پاکستان کی خلیجی جنگ ختم کرنے کی کوششیں، خطے میں امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار۔ وزیراعظم کا مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا، امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ پاکستان جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا۔ وزیراعظم نے اپنا پیغام ٹرمپ، اسٹیو وٹکاف اور ایرانی صدر کو ٹیگ کر دیا۔ امریکن صدر ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف کا بیان سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ وزیراعظم نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں مذاکرات کی میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان خطے کا سب سے اہم پلیئر بن گیا۔ بے مثال سفارتکاری نے پاکستان کی اہمیت کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ ایران جنگ کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کی ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی تصدیق۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کے ممکنہ دورہ اسلام آباد کے بارے میں سوال کے جواب میں ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ حساس سفارتی بات چیت ہے، امریکی معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر فریقین راضی ہیں تو پاکستان سازی کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ مذاکرات کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اجلاس کے بعد رابطوں کا آغاز کر دیا۔ اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ابھرتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کا امن اور استحکام کی اہمیت پر زور، فوری طور پر کشیدگی میں کمی کا مطالبہ، کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ چینی سفیر کی مشرق وسطیٰ میں جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ جیانگ زیڈونگ نے کہا ہے کہ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چین بین الاقوامی قانون کو ملک کے قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کی سربراہ کا بھی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور، کہا بڑھتا ہوا تنازع عالمی توانائی کی سپلائی میں خلل ڈال رہا ہے۔ دنیا بھر میں توانائی کی فراہمی کے لیے صورتحال نازک ہے۔ جرمنی بھی امریکن صدر ٹرمپ کے خلاف پھٹ پڑا۔ ایران جنگ تباہ کن سیاسی غلطی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے کہا، جنگ کے لیے امریکہ پر ایران کے حملے کا جواز بھونڈا اور قابل قبول نہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ یورپ تعلقات میں دراڑ ڈال دی ہے، تعلقات ماضی کی سطح پر واپس نہیں جا سکتے۔ جنگ میں پسپائی، منہ کی کھائی، ٹرمپ کی ہر جگہ رسوائی، اتحادی اور خلیجی ممالک کے سخت نتائج کی دھمکی، امریکی صدر ڈر گئے، بار بار بیان بدلنے لگے۔ ٹرمپ نے ایرانی پاور پلانٹس پر حملے اتحادیوں کے دباؤ میں آ کر روکے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف، ٹرمپ کا مذاکرات اور اہم نکات پر اتفاق کا دعویٰ، پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کر دیے، دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ حالیہ بات چیت میں 15 نکات پر پیش رفت ہوئی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں، جنگ دوبارہ نہ شروع کرنے کی ٹھوس ضمانت، خطے سے امریکی فوجی اڈوں کا خاتمہ اور ہرجانہ ادا کرنے کی بڑی شرط، تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد اور ایران مخالف میڈیا آپریٹیوز کے خلاف قانونی کارروائی اور ملک بدر کرنا شرائط میں شامل۔ محمد باقر ذوالقدر ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری مقرر۔ محمد باقر ذوالقدر کی تعیناتی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی منظوری کے بعد کی گئی۔ اس سے قبل ڈاکٹر علی لاریجانی شہید اس عہدے پر فائز تھے، جنہیں حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دیا۔ آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز، 79ویں لہر کو مبارک یا خیر الفاتحین کا نام دیا گیا۔ طاقتور خیبر شکن نماد سجیل میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال، تل ابیب کے شمالی اور مرکزی علاقوں پر میزائل داغ دیے، انٹیلیجنس مراکز، تجارتی اور فوجی سپورٹ مراکز نشانہ بنائے گئے۔ اسرائیلی علاقوں میں ہر طرف دھوئیں اور آگ کے شعلے، ایلات، دیمونا، شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈ میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب
साहब ने कहा, अब तक पासदारान इंकलाब की ज़्यादातर जंगी यूनिट्स और बसीज फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर मैदान में नहीं उतारा गया, ताहम ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी शामिल किया जाएगा। अमरीकी सदर की दोगली पॉलिसी, ट्रंप के ऐलान के बावजूद इजराइल के ईरान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फजाई हमले। ईरान के शहर इस्फहान में अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फजाई हमले किए गए। खुर्रमशहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। खुर्रमशहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर भी हमला। तबरेज में 6 ईरानी शहीद हो गए, 19 जख्मी। जनूबी लबनान के तारीखी शहर तायर पर इजरायली फजाई हमला। इजरायली जंगी तैयारों ने मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। नेतन्याहू की खित्ते को जंगों में धकेलने की पॉलिसी ने इस्राएली फौजियों को पागल कर दिया। मुसलसल खौफ और बेकसूरों के कत्लेआम से इस्राएली फौजी ज़हनी तवाज़ुन खोने लगे। तल अवीव की एक पनाहगाह में इस्राएली फौजी ने खुदकुशी कर ली। ईरानी हमले के दौरान पनाहगाह में छिपने वाले इस्राएलियों ने अपने एक फौजी को मुर्दा हालत में पाया। फौजी की लाश पर गोली का निशान था। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जारी जंग और तवील फौजी सर्विस के बाइस इस्राएली फौज के एहलकारों में नफ्सियाती दबाव और तनाव शदीद हद तक बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नतायज सामने आएंगे। ईरानी फौज का अमरीकी सदर को पैगाम। ईरानी फौजी एहलकार ने कहा है कि सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज करें। ईरान बड़ा सरप्राइज देने वाला है। पासदारान इंक़िलाब के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप का जुमला तंज़न दोहरा दिया कि ट्रंप, यू आर फायर्ड, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। जंग में पिटाई। ईरान के खिलाफ जंग में मुंह खाने के बाद अमेरिका ने B-52 बॉम्बर तैयारे भी उतार दिए। बरतानिया की बेसिस का भी इस्तेमाल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बरतानिया के रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट से भी फजाई कार्रवाई की। B-52 बॉम्बर तैयारों का इस्तेमाल किया गया। दिफाई ज़राए के मुताबिक B-52 बॉम्बर तैयारे ताकतवर बम ले जाने और दूर फासले तक हमले करने की सलाहियत रखते हैं। लबनान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। लबनानी सफीर को मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत के लिए वापस बुलाया गया। ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। लबनान ने ईरान की जानिब से सफारती ताल्लुकात के खिलाफ वर्जी पर सफीरों की वापसी के इक़दाम किए। आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। बहरीन ने सलामती काउंसिल से मंजूरी लेने की तजवीज़ पेश कर दी। बहरीन की मुजव्विज़ा करारदाद का मुसव्विदा सलामती काउंसिल के रुकन मुल्कों के हवाले। फ्रांस ने भी अपनी तजवीज़ तैयार कर ली। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत दोबारा बढ़कर $104 फी बैरल से भी तजावुज कर गई। ट्रंप के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। मुज़ाकरात से पीछे हटने पर मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई। मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। काबीना कमेटी इजलास में आलमी मार्केट सूरत हाल पर भी गौर। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का तफसीली जायजा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, दरामदी इंतजामात और मुकामी पैदावार से सप्लाई मुस्तहकम है। तवानाई सप्लाई मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की मुतल्लिक़ा इदारों को सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम की बिला तात्तुल फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत का सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि दुनिया हालत जंग में है तो हमें ईंधन बचाना है। अगर जंग तवील होती है तो तवानाई के मसाइल बढ़ेंगे। बहरान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सोच विचार कर रही है। खलीजी ममालिक की जंग के बाइस मुल्क में तवानाई बहरान। पंजाब हुकूमत की सूबे में अहम फैसलों की तैयारी। तालीमी इदारों में छुट्टियों में तोसी और पेट्रोल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोपिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। महकमा तवानाई पंजाब ने सूबाई हुकूमत को नई सिफारिशात भिजवा दी। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात भी तजवीज़ में शामिल। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर।
PSL के 11वें एडिशन का ऑफिशियल नगमा जारी। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गीत गाया। गुलकारा आयमा बेग, दानिया कमल और साबरी सिस्टर्स ने भी आवाज का जादू जगाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब कहते हैं कि कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL को महदूद किया गया। मुझे यकीन है कि आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। PSL एक टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। OGDCL ने सिंध के जिला हैदराबाद में पासाखी कुएं से तेल की पैदावार शुरू कर दी। पासाखी पाकिस्तान का पहला कामयाब हॉरिजॉन्टल तेल का कुआं करार। कुएं से यौमिया 460 बैरल तेल हासिल किया जा रहा है। मंसूबा मुल्क की तेल की पैदावार बढ़ाने और तवानाई के शोबे को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। रोजाना की बुनियाद पर कराची वाले डंपर गर्दी का शिकार हो रहे हैं। माओं की गोदें उजड़ रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तनकीद, बोले कि हम ट्रैफिक हादसात की रोकथाम की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सियासत कर रहे हैं। इस तरह हादसात होते रहें, हम चुप बैठे रहें, ऐसा नहीं चल सकता। तर्जमान सिंध हुकूमत गनहूर खान इसरान ने रद्दअमल में कहा, कराची के अवाम जानते हैं कि कौन नाअहल और नाकाम है। खैरात के मैंडेट पर सियासत करने वालों को अवाम अच्छे से जानते हैं। अवाम जानते हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने कराची को माले गनीमत समझकर बर्बाद किया। सदर मुमलिकत ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी। मुसल्लह फौज के 1253 अफसरान और जवानों को खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड देने का ऐलान किया गया। ISPR के मुताबिक 11 सितारे बसालत, 475 तमगा बसालत, 130 इम्तियाजी असाम की मंजूरी दी गई। 23 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 100 सितारे इम्तियाज मिलिट्री देने की भी मंजूरी दी गई। कराची में आज भी खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कायदाबाद में कोस्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को चल दिया, 2 अफराद जाँ बहक। चमड़ा चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने 2 शहरियों को रौंद दिया, 1 शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। डिफेंस फेज 5 में गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे का जख्मी भी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। हादसे की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची वाले हो जाए तैयार, आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। कल से 29 मार्च तक वक्फे से बारिश की पेश गोई। तेज हवाओं और आंधी के साथ बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में भी 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध का बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कोलंबिया में एयरफोर्स का C-130 तैयारा जनूबी इलाके में गिरकर तबाह, 66 अफराद हलाक। तैयारे ने पीरो की सरहद के करीब से उड़ान भरी थी। फायर फाइटर्स ने तैयारे की उड़ान भरते वक्त रनवे के अख्ताम के करीब किसी चीज से टकराने का खदशा जाहिर कर दिया। तैयारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। और 74 साला पाकिस्तानी ने एक और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके हैट्रिक मुकम्मल कर ली। मोहम्मद तरीन वेल्डर नसीमुद्दीन ने हाथ में अंडा पकड़कर 38 मार्बल टाइल्स को तोड़ने का रिकॉर्ड कायम किया। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिकॉर्ड अपडेट भी कर दिया गया।